जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 9 श्लोक 9। न च मामतानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनं सक्तं तेषु कर्मसु। हे धनंजय, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश स्थित हुए मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते हैं। हे अर्जुन, प्रकृति जिन कर्मों का आचरण करती है वे कर्म मुझे बांध नहीं सकते। यदि वास्तव में देखा जाए तो यह प्रकृति जो नाम रूप आदि विकार उत्पन्न करती है उनका आधार मैं ही हूँ, पर मैं सदा उदासीन या तटस्थ रहता हूँ और इसलिए न तो मैं कोई क्रिया करता हूँ और न कराता ही हूँ। यदि किसी घर में कोई दीपक जलाकर रख दिया जाए तो न तो वह दीपक किसी से कोई काम कराता ही है और न किसी को कोई काम करने से रोकता ही है। वह तो यह भी नहीं देखता कि कौन क्या कर रहा है। जिस प्रकार वह दीपक तटस्थ रहता है परंतु फिर भी मकान में रहने वाले लोगों की क्रियाओं का कारण होता है, उसी प्रकार यद्यपि मैं भूत मात्र में रहता हूँ परंतु फिर भी भूत मात्र के कर्मों के साथ मेरा कुछ भी संबंध नहीं रहता। भगवान जीव के सुख दुख के उत्पादक नहीं है। सुख दुख जीव के अपने अपने कर्मों के अनुसार ही हुआ करते हैं। जगत के सारे कर्म सब प्रकृति के वश इंद्रियों द्वारा हुआ करते हैं, परंतु आत्मा को वे समस्त कर्म लिप्त नहीं कर सकते। आकाश के सदृश निर्व्यव आत्मा को कदापि कोई लिप्त नहीं कर सकता। वह इनसे सदा ही पृथक है। यह तब ही समझ में आता है जब अभ्यास के प्रभाव से योगी का प्राण ऊर्ध्व सहस्रार में स्थिति लाभ करता है। जिस प्राण ने चंचल होकर जगत की सृष्टि की थी उसके स्थिर होने पर योगी के सामने जगत दृष्टि नहीं रह जाती। जगत व्यापार का फिर अस्तित्व ही नहीं रहता। कर्तृत्व भोक्तृत्व न रहने पर जगत रहते हुए भी नहीं रहता। यही गुणातीत भाव है। इस अवस्था में रहने पर गुण कर्म योगी को स्पर्श नहीं कर सकते। जब स्पर्श ही नहीं कर सकते तो फिर उसके बंधन का कारण किस प्रकार हो सकते हैं? But though it seems as if I am not in these beings, I am like the air moving everywhere. All creatures pass into my nature at the end of a cycle and are reborn at the beginning of creation. These acts are mine, but they do not bind me, for I act in a spirit of a detachment and am indifferent as to the fruit they bear. These events happen as such in my nature. As in the case of Paramatman, so in the case of others also, the absence of the egoistic feeling of agency and the absence of attachment to the fruits of action is the cause of freedom, mukti, from dharma and adharma, virtue and evil. The ignorant man who works with egoism and who expects rewards for his action is bound by his own actions like the silkworm in the cocoon. When egoism goes, all miseries vanish along with it. When the devotee gets fixed in the conviction that whatever happens
is by the will of the Lord, and that he is merely an instrument in his hand. Mukti is ensured for him in this very birth. Om. నా సద్గురు సందేశం గీతాసుధ పరసద్మాత్మ శ్రీ యశ్పాజీ మహారాజు వారిచే ప్రతిపాదించబడిన ప్రవృత్తిలో నివృత్తి గృహస్థ మార్గంలో గీతా భాష్యము అధ్యాయం 9 రాజవిద్య రాజగుహ యోగము శ్లోకం 9. నచిమాం తాని కర్మాణి నిబంధంతి ధనుంజయ ఉదాసీన వదాసీనమసక్తం తేషు కర్మషు. హే ధనుంజయ, ఈ కర్మల యందు ఆసక్తి లేని మరియు ఉదాసీనమైన స్థితిని కలిగిన పరమాత్మ నన్ను ఆ కర్మలు బంధించలేవు. ఓ అర్జున, ప్రకృతి ఏ కర్మలను ఆచరించినో ఆ కర్మలను నన్ను బంధించలేవు. వాస్తవానికి చూసినట్టయితే ప్రకృతి ఏ నామరూపాది వికారములను ఉత్పన్నం చేస్తుందో వాటికి ఆధారం నేనే. ఆయనను నేను ఉదాసీనంగా తటస్థంగా ఉంటాను. అందుచేత నేను ఏ పని చేయను, ఏ పని చేయించను. ఏదైనా గృహంలో ఏదైనా దీపం వెలిగించబడి ఉన్నట్లయితే ఆ దీపం ఎవరి చేత ఏ పని చేయించదు. ఎవరిని ఏ పని చేయించకుండా అడ్డుపడదు. అది ఎవరు ఏ పని చేస్తున్నారో అది కూడా చూడదు. ఏ ప్రకారంగా ఈ దీపం తటస్థంగా ఉంటుందో, అయినప్పటికీ ఇంట్లో ఉండే వారి క్రియలకు కారణమవుతుందో, అదేవిధంగా నేను ప్రాణులందు ఉంటాను. అయినప్పటికీ ప్రాణుల కర్మలతో నాకు సంబంధం ఏదీ ఉండదు. భగవానుడు జీవుల సుఖదుఖములను పుట్టించేవాడు కాదు. సుఖదుఖములు జీవునికి వాటి వాటి కర్మానుసారమే కలుగుతూ ఉంటాయి. మొత్తం ప్రపంచం యొక్క సమస్త కర్మలు ప్రకృతి వశమై ఇంద్రియముల ద్వారా చేయబడుతూ ఉంటాయి. అయితే ఆత్మను ఈ సమస్త కర్మలు లీనం గావించుకొనలేవు. ఆకాశంతో సమానంగా అవయవము లేని ఆత్మను ఎన్నడూ ఏదీ లీనం గావించుకొని చాలదు. ఆత్మ ఈ అన్నిటి నుండి ఎప్పుడూ భిన్నమే. అభ్యాస ప్రభావంతో యోగి ప్రాణములు ఎప్పుడు ఊర్ధ్వమున ఉన్న సహస్రాల్లో నిలుస్తాయో అప్పుడు ఈ విషయం అర్థమవుతుంది. ఏ ప్రాణము చంచలమై జగత్ సృష్టిని గావిస్తుందో ఆ ప్రాణములు స్థిరమైనప్పుడు యోగి ముందు జగద్దృష్టి ఉండదు. ఇక ప్రపంచ వ్యవహారాలు అస్తిత్వము ఉండదు. కర్తృత్వము భోక్తృత్వము ఉండకపోవచ్చే ప్రపంచం ఉన్నా కూడా లేనట్టే. ఇదే గుణాతీత భావం. ఈ స్థితిలో ఉన్నాక యోగిని గుణకర్మలు స్పర్శించజాలవు. ఇక స్పర్శించుటేలే చేయలేకపోయినప్పుడు అవి ఏ విధంగా బంధమునకు కారణము కాగలవు? పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై బస. സദ്ഗുരുവിന്റെ സന്ദേശം അധ്യായം 9 ശ്ലോകം 9. നജമാം താനി കർമാണി നിബന്ധന്തി ധനഞ്ജയ ഉദാസീനവദാസീനമസഗ്ധം തേഷു കർമ്മസു. ഹേ ധനഞ്ജയ, ആ കർമ്മങ്ങൾ എന്നെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഞാൻ അവയിൽ അനാസക്തനായും ഉദാസീനനായും നിലകൊള്ളുന്നു. ഹേ അർജുന, പ്രകൃതി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും എന്നെ ബന്ധിപ്പിക്കില്ല. എന്നാൽ ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാ രൂപനാമ വികാരങ്ങൾക്കും അടിസ്ഥാനമായത് ഞാൻ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാറ്റിനും ആധാരമായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എപ്പോഴും തടസ്സമില്ലാത്ത ഒരു സാക്ഷിയായി തുടരുന്നു. ഒരു വീടിനുള്ളിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ദീപം പോലെ അത് ആരെയും പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയോ തടയുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷേ അതിൻ്റെ വെളിച്ചം കൊണ്ട് എല്ലാവരും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഞാൻ സകല ജീവജാലങ്ങളിലുമുണ്ട്. എന്നാൽ അവരുടെ കർമ്മങ്ങളുമായി എനിക്ക് ബന്ധമില്ല. ഭഗവാൻ ആരുടെയും സുഖദുഃഖങ്ങൾക്ക് കാരണമല്ല. ഓരോ ജീവനും സ്വന്തം കർമ്മഫലം അനുഭവിക്കുന്നു. ലോകത്തിലെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ നടക്കുന്നു. എന്നാൽ ആത്മാവ് അതിൽ കുടുങ്ങുന്നില്ല. എന്നാൽ ഒരു യോഗിയുടെ പ്രാണൻ യോഗാഭ്യാസത്തിലൂടെ സഹസ്രാരത്തിൽ സ്ഥിരമാകുമ്പോൾ യോഗിക്ക് ലോകത്തിന്റെ ദൃശ്യം തന്നെ ഇല്ലാതാകുന്നു. കർത്തൃത്വവും ഭോക്തൃത്വവും ഇല്ലാതാകുന്നു. ഇതുതന്നെയാണ് ഗുണാതീതാവസ്ഥ. ഈ അവസ്ഥയിൽ കർമ്മങ്ങൾ ബന്ധിപ്പിക്കപ്പെടുന്നില്ല. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. ജയ് സദ്ഗുരുദേവ്, ജയ് പതിശരണം. जय गुरुदेव, जय पतिशरण. अध्याय 9 श्लोक 9. धनंजय, मी त्या कर्माप्रती असलेल्या आसक्तीपासून मुक्त आहे आणि उदासीन राहतो. हे धनंजय, ती कर्मे मला म्हणजेच परमात्म्याला बांधून ठेवू शकत नाहीत. हे अर्जुना, प्रकृतीने केलेली कर्मे
मला बांधून ठेवू शकत नाही, कारण खरे पाहिले तर मीच प्रकृतीतील त्या बदलांचा आधार आहे. जे नाम आणि रूप आणि इतर रूपे निर्माण होतात, परंतु मी तेव्हा नेहमीच उदासीन असतो आणि म्हणूनच मी कोणतेही कर्म करत नाही किंवा कोणाकडून करवूनही घेत नाही. ज्या प्रकारे घरात दिवा लावलेला असल्यावर तो कोणाकडून काहीच करवून घेत नाही किंवा कोणालाही काही करण्यापासून थांबवतही नाही आणि कोण काय करत आहे हे सुद्धा तो बघत नाही. ज्याप्रमाणे घरात असलेला रात्रीच्या वेळेला असलेला दिवा उदासीन राहूनही घरात राहणाऱ्या लोकांच्या कर्मांना कारणीभूत ठरतो, कारण ते त्याच्या प्रकाशामध्ये सर्व कर्म करतात. त्याचप्रमाणे जरी मी सर्व जीवांमध्ये वास करीत असलो तरीही त्यांच्या कर्माशी माझा काडी मात्रचा काहीही संबंध नाही. ईश्वर हा जीवांच्या सुखाचा किंवा दुःखाचा निर्माता नाही. सुख आणि दुःख हे व्यक्तीच्या स्वतःच्या कर्मानुसारच येतात. जगातील सर्व कर्मे ही प्रकृतीच्या प्रभावाखालीच इंद्रियांद्वारे केली जातात, परंतु त्या कर्मांमध्ये आत्म्याचा समावेश होऊ शकत नाही. जो आत्मा आकाशाप्रमाणे निराकार आहे त्याला कोणीही कधीही आपल्यात सामावून घेऊ शकत नाही. तो त्यांच्यापासून नेहमीच वेगळा असतो. हे तेव्हाच समजते जेव्हा साधनेद्वारे एखाद्या योगाची प्राणशक्ती वरच्या सहस्राधार चक्रामध्ये आपले स्थान प्राप्त करते. ज्या प्राणशक्तीने आपल्या अशांततेतून जगाची निर्मिती केलेली आहे ती जेव्हा स्थिर होते तेव्हा योग्याला जग हे दिसत नाही. जगातील क्रियांचे अस्तित्व संपुष्टात येते. जेव्हा कर्ता आणि भोगता नसतो तेव्हा जग अस्तित्वात असले तरीही त्याचे अस्तित्व संपुष्टात येते. ही एक दिव्य भावना आहे. या अवस्थेत असताना सत्कर्मे योग्याला स्पर्श करू शकत नाहीत. जेव्हा आपण स्पर्शही करू शकत नाही तेव्हा त्याच्या बंधनाचे कारण कसे बरे राहील. परंतु जरी असे वाटत असले की मी या जीवांमध्ये नाही, तरी मी स्वतंत्र संचार करणाऱ्या हवेसारखा आहे. सर्व जीव एका चक्राच्या शेवटी माझ्या प्रकृतीतच विलीन होतात आणि सृष्टीच्या सुरुवातीला पुनर्जन्म घेतात. ही कर्मे माझी आहेत, परंतु त्या मला बांधून शकत नाहीत, कारण मी अलिप्ततेच्या भावनेने कार्य करतो आणि त्यांच्या फळाविषयी मी उदासीन असतो. या घटना माझ्या स्वभावात जशा घडतात तशाच घडतात. परमात्म्याच्या बाबतीत जसे आहे तसेच इतरांच्या बाबतीतही आहे. कर्म करण्याच्या अहंकारी भावनेचा अभाव आणि कर्माच्या फलाविषयी आसक्तीचा अभाव हेच धर्म आणि अधर्म, पुण्य आणि पाप यापासून मुक्तीचे कारण आहे. जो अज्ञानी मनुष्य अहंकाराने काम करतो, मी करतो, हे माझं आहे आणि आपल्या कर्माच्या फळाची अपेक्षा करतो, तो रेशमी किड्याप्रमाणे त्याच्या कोशात स्वतःच कर्माने बांधलेला असतो. जेव्हा अहंकार म्हणजे मीपणा नाहीसा होतो तेव्हा त्याच्यासोबत सर्व दुःखही नाहीशी होतात. जेव्हा भक्त या दृढ विश्वासात स्थिर होतो की जे काही घडते ते भगवंताच्या इच्छेनुसार घडते, माझ्यामुळे नाही, आणि तो केवळ भगवंताच्या हातामधील एक साधन आहे, एक इन्स्ट्रुमेंट आहे, तेव्हाच त्याला याच जन्मामध्ये मुक्ती प्राप्त होते. जय गुरुदेव. न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीन वदासीन मसक्तम तेषु कर्मसु. हे धनंजय, ओई कर्म सब में आसक्ति रहित आ उदासीन स्थित हमरा माने परमात्मा के ओ कर्म कखनो नहीं बांध सकैत अछि. हे अर्जुन, प्रकृति जे कर्म करैत अछि ओ कर्म हमरा बांध नहीं सकैत अछि. वास्तव में देखल जाए
त ई प्रकृति जे नाम रूप आदि विकार उत्पन्न करैत अछि तकर आधार हम ही छी, मुदा हम सदा उदासीन आ तटस्थ रहैत छी। तैं ने हम स्वयं कोनो क्रिया करैत छी आ ने करबबैत छी। जब कोनो घर में दीप जरा कर राखल जाय त ओ दीप ने ककरो सँ कोनो कर्म करबबैत अछि आ ने ककरो काज करऽ सँ रोकैत अछि। ओ त इहो नहि देखैत अछि जे के की कऽ रहल अछि। जेना ओ दीप तटस्थ अछि, मुदा तैयो ओ घर में रहनिहार सब लेल क्रिया के कारण बनैत अछि, ओहिना हम भूत मात्र में रहितौं भूत सबके कर्म सँ सर्वथा असंबद्ध रहैत छी। भगवान जीव के सुख दुख के उत्पादक नहीं छथि। सुख दुख जीव के अपन अपन कर्म अनुसार होइत अछि। जगत के सब कर्म प्रकृति के अधीन इंद्रिय सब सँ होइत अछि, मुदा आत्मा के ओ सब कर्म कखनो लिप्त नहीं कऽ सकैत अछि। आकाश एहन निरवयव आत्मा के कियो कखनो लिप्त नहीं कऽ सकैत अछि। ओ सदा एहि सब सँ फराक रहैत अछि। ई तखने स्पष्ट बुझाइत अछि जखन अभ्यास के प्रभाव सँ योगी के प्राण ऊर्ध्व सहस्रार में स्थित भऽ जाइत अछि। जे प्राण चंचल भऽ कऽ जगत के सृष्टि करैत छल, ओ स्थिर भऽ गेला पर योगी के सोझा में जगत दृष्टि नहीं रहैत अछि। तखन जगत के व्यवहार समाप्त भऽ जाइत अछि। कर्तृत्व आ भोक्तृत्व नहीं रहबाक कारण जगत रहितौ नहीं रहैत अछि। यह गुणातीत भाव अछि। एहि अवस्था में रहला पर गुण आ कर्म योगी के स्पर्श नहीं कऽ सकैत अछि। जखन स्पर्शे नहीं कऽ सकैत अछि तखन ओकरा बंधन में केना बांधि सकैत अछि। अखिल भारतीय संत मत सत्संग, पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा। हमारे साथ जुड़ने और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सत्संग कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी पाने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन करें। धन्यवाद।